कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू फाइंड प्रॉब्लम्स बिकॉज यू वांट स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस नहीं था, चलो कुछ स्ट्रेस ढूंढ के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, है ना? कुछ तो चाहिए टेंशन लेने के लिए। कुछ तो चाहिए टेंशन लेने की। वही तो हो रहा है आज की डेट में। हम सांस लेना भूल चुके हैं, खाना खाना हम भूल जाते हैं। सांस जो लेते वक्त पेट ऊपर जाना चाहिए वो उल्टा हो रहा है। सांस ले रहे हैं पेट अंदर जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं पेट बाहर आ रहा है। ऑल द एंशिएंट नॉलेज इज इन संस्कृत. So how would teachers, even the best of teachers from India, would have found it very difficult to explain it to the West what it truly means? For example, when we talk about prana, prana is loosely translated as life energy. There are so many words that do not have direct translation in English. कोई भी movement practices करेंगे physical benefits मिलेंगे. योगिक movement practices करेंगे mental benefits मिलेंगे. Alright. It's not just your life that is getting benefited. People around you are going to feel that change. You're going to become a better person, a calmer person in general. You're going to show up as a better husband. You're going to show up as a better father. You're going to show up as a better boss. मुझे लग रहा है कि मेरे पास पैसे कम हैं, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, शायद मैं ये करूँगी तो मेरे अगले अप्रेजल में अच्छे पैसे बढ़ जाएंगे, तो मैं लाइफ में बेटर हो जाऊँगी. या फिर कंपटीशन और जेलसी. All your experiences are limited to the level of the mind. In meditation, you transcend the mind. If there is no mind, how can you have experience? नमस्कार एंड वेलकम टू द शो. आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द बेस्ट योगा प्रैक्टिशनर्स आई नो, दिशा पांडे जी. इनकी कमाल की एनर्जी है और अमेजिंग रिट्रीट्स करती हैं. लेट्स स्टार्ट द शो. Disha ji, can you briefly share your journey into yoga and what inspired you to dive deep into its ancient practices? Definitely. Thank you so much for giving me this opportunity to talk about it. So my journey actually started when I was a child. I'm born in a spiritually inclined family. So it was always these practices that were being practiced at home. It's just that at that time, I did not understand the full length and breadth of this practice. Okay. And we did not exactly understand, what's yoga and all of the glory of yoga, basically. So at that time it was just as a part, it's a part of the culture, right? So and I'm sure that it's not just me. In many households, it's just a part of the culture. Your moms have a lot of wisdom in most cases, and then they pass that down to you. So I remember when I was a child, my mother used to say, ध्यान लगाओ, एग्जाम से पहले त्राटक करो, थोड़ा सा नाक में कुछ भी कंजेशन है तो नेति करो. और we didn't exactly call it meditation, but उस टाइम पे से meditation word जैसे आज के टाइम पे इतना पॉपुलर है, उस टाइम पे ऐसे नहीं होता था. तो ध्यान बोलते थे, मम्मी कहती थी ध्यान लगाने की कोशिश करो. हम बचपन से प्राणायाम करते थे, ब्राह्मणी, ओम चैंटिंग करो. तो ये सारी चीज़ें बचपन से चलती थी, बट वो टैड बिट्स इधर उधर करते थे और इतना समझ नहीं आता था कि क्या होता होगा. बस इससे कर लेते थे क्योंकि लगता था कि ये अच्छा होता है, ये करना चाहिए. करते थे तो खुद को भी अच्छा लगता था, और बस वो करते करते एक लाइफ का पार्ट बन गया. बट देन कॉर्पोरेट जब किसी की लाइफ में होता है, आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड दिस, एंड कॉर्पोरेट हैपेंस टू यू, life starts to unhappen. So that happened with me. I was too deep into it. I became a workaholic. I lost touch with myself. For a very long time, I was disconnected with myself. And then slowly and gradually, something happened, a few turn of events. I would not get that deep into it because that's a long story. But a few turn of events happened that made me look deeper and basically reconsider as to what I'm doing in life. And when I started doing that, the answers started from very basic things like, just doing movement practices. Okay. Started with that. And when I started movement practices, yogic movement practices, I realized that this is not it. There's so much more about it. And then I started researching, learning about it, reading about it. And when I did that, I realized that it's a vast universe. But one thing that is, आपका बचपन से ये रूटीन था कि आप योगा करते थे घर पे, उसके बाद भी ऐसे डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? या फिर आपने उसको डेली प्रैक्टिस में नहीं रखा, या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी? इनमें डिफरेंस आ जाता है. बेसिकली हाँ, एक्चुअली इम्पोर्टेंस नहीं समझी. क्या होता है कि आपको लगता है कि एक टाइम तक, जब तक व्हेन यू आर स्टडीइंग, यू हैव सम टाइम ऑन यू यूज दैट टाइम द वे
the way you want to, or the way you have been raised, basically. But then when corporate life happens, there is no fixed timings of work, right? Because you may say that, there's a 9 to 6, but the kind of jobs that I had, there was no fixed timing. So I used to work, until 3 a.m. in the morning. And of course, I was in a sleep deficit. So when that happened, of course, that all of the practices took a backseat. Even the food took a backseat. And I'm sure a lot of your audience will relate to it, that when there's a lot of workload on you, the food also takes a backseat. You say, okay, lunch बाद में कर लेंगे, है ना? लंच बाद में कर लेंगे और भूख भी मर जाती है, आपका लंच करने का मन ही नहीं कर रहा होता. Exactly. तो जब वो खाना आहार ही नहीं जा रहा अंदर ठीक से, तो बाकी चीजें तो फिर भूल ही जाते हैं. तो लाइफ ऐसे हो गई. जो चीज हमने बचपन से सीखी हुई है, जिसका हम डेली रूटीन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो भी इतनी बैकसीट ले लेती है कि आप उसको भूल जाते हो कि इसको करने से हम बेटर हो जाएंगे? बिल्कुल ले लेती है. थिंक अबाउट इट. मैं आपको बहुत सिंपल एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम सांस लेते हैं जी, एक बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसको सांस लेना आता है जी, है ना? आपने देखा होगा, बच्चे का पेट ऊपर जाता है, सांस लेता है, छोड़ता है, पेट अंदर जाता है. बहुत बेसिक इनेट नॉलेज है सांस लेना, है ना? जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स बोलती है ना कि सांस लेना तो नहीं भूल जाते हो, खाना खाना तो नहीं भूल जाते हो. मैं कह रही हूँ वही तो हो रहा है आज की डेट में. हम सांस लेना भूल चुके हैं, खाना खाना हम भूल जाते हैं. सांस जो लेते वक्त पेट ऊपर जाना चाहिए वो उल्टा हो रहा है. सांस ले रहे हैं पेट अंदर जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं पेट बाहर आ रहा है. करके देखना चाहिए ऑडियंस को. मैं बोलूँगी बहुत सारे लोगों को ये महसूस होगा कि उल्टा हो रहा है. जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ पहली बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग करा रहे हो तो उल्टा, तो बेसिकली आपकी जो इनेट विजडम है वो भी लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से कहीं ना कहीं लूज हो जाती है. मतलब हमें उसको भी रिमाइंड कराते रहना बहुत जरूरी है. बहुत ज़रूरी है. तो आप आपके अकॉर्डिंगली ये आप खुद कर सकते हो या फिर आपको एक मेंटोर, एक टीचर, एक गुरु की जरूरत पड़ती है? एक लेवल तक आप खुद कर सकते हो जी. एक टाइम के बाद आपको गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस ऐसी हैं दैट दिस इज अ सिस्टम. देयर इज अ सिस्टम टू इट. So it's not like you can do everything on your own without the knowledge. Of course, you can go and read about it because there's a lot of literature available. But the problem with the literature is that this is the world of internet, and internet has all kinds of information in it, and a lot of it is very misleading. So that is the reason I say that it's not always a good idea to do it on your own. Try to find a teacher, and it's also very important the kind of teacher you land up with. Because you need right guidance. It's very easy to become a yoga teacher today. Information and misinformation का difference बहुत ज़्यादा है. हाँ. तो इसीलिए it's better that you get good guidance. But then of course self practice is important. You can start with self practice. You do not have to wait to find a teacher to start your practices. ये excuse नहीं बने. Okay, how do you define modern yoga and how does it differentiate from the traditional yoga? Good question. So first of all, there is no such thing, technically speaking, there's no such thing as modern yoga, traditional yoga. It's just yoga. Okay. Yeah. And then what happens here is that in today's world, because there's so much information available out there, we start to mold the information the way that it helps us. It's convenient, the way that is convenient. So that information, the amount of knowledge that we have in yoga has been molded in a way that fits a lot of different people's interests, vested interests. It has been commercialized. Yes, it has been. Yes. So that way also it has, of course, when you commercialize things, then there has to be a motive to when you're selling it. So when I say modern yoga, if I have to say modern yoga, what I mean is basically the way people have started selling it. Okay. Yeah. They don't call it modern yoga. The good thing is that they don't call it modern yoga. Yoga is yoga. Yoga is yoga. Huh? So the way that it is being viewed in today's world is that it's an exercise practice. You go out in the world random and you say कि चलो आज योगा क्लास में चलते हैं. What is the first thing that will come to people's mind? एक्सरसाइज करनी है. बेंडी एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबल, सर पे पैर रख देंगे, पैर को सर पे रख देंगे, है ना? ये आता है दिमाग में. I am saying that there's one very small fraction of yoga.
ओके। बट हम उसको ही पूरा योग समझते हैं, तो वो डेप्थ नहीं समझ रहे हैं। वो हो गया मॉडर्न योगा। एक एग्जाम्पल इसका ये है। और दूसरा फिर उसके मॉडर्न जब हम बोलते हैं तो वो ये भी है कि आप बहुत छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ते हैं और आप बोलते हैं कि इसके लिए करो। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी फनी, फेस योगा, गुड स्किन के लिए योगा, अच्छी बात है, मैं नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट हियर्स द थिंग, व्हेन वी कीप टेलिंग दिस नैरेटिव, वी propagate a story that this is yoga. What's important for people to understand that these are only the byproducts of yoga. Good skin is a byproduct of yoga. Okay. It's not why you do yoga. So that's basically what modern yoga is, the way we understand it. When we say traditional, then yoga is a very ancient practice. And when you really start looking deep at it, it's the way you should live. It tells you the way you should live. मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि योगा अगर एक यूनिवर्स है तो हम उनको सिर्फ एक डॉट सिखा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये योगा है। योग है, हाँ। और लोग उसको सच समझ लेते हैं। लोग उसको सच समझ लेते हैं। वहां से मिसकॉन्सेप्शन स्टार्ट होते हैं। जब वो मिसकॉन्सेप्शन होगा तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि योगा का स्कोप कितना बड़ा है। एग्जैक्टली। फिर वहाँ से मिसकॉन्सेप्शन, वहाँ से सुपरस्टिशन, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। कई लोग योगा को एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस भी देखते हैं, उनको है ना, क्योंकि पूरी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जो पूरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कई लोग ओम चैंटिंग को इस तरीके से भी बोलते हैं कि ओम चैंटिंग करने से गला ठीक होता है। तो अभी सिर्फ ओम चैंटिंग से अगर इसी लेवल तक रखेंगे तो बोलेंगे कि अच्छा एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ओम तो एक मंत्र है, मैं तो नहीं चैंट। सम पीपल माइट से आई एम एन एथीस्ट, आई वोंट चैंट ओम। लेकिन क्योंकि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। नहीं, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। जैसे मेरा कुछ अगर गला खराब है कुछ, तो आई आस्क वन ऑफ द सिंगर्स एंड ही फॉलोज अनदर रिलीजन, नॉट हिंदुइज्म। तो मेरे को बहुत हैरानी हुई जब उसने बोला सुबह उठ के ना 15 मिनट आप ओम का उच्चारण करो। आई वाज शॉक्ड, मेरे को कौन बोल रहा है। एंड इट्स लाइक कई बार होता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ये वाला आंसर, बट आई एम हैप्पी दैट पीपल आर लुकिंग एट Om ka ucharan as clearing the voice and getting it better for singing. That is true. So yeah, that's why I say that it's not a bad thing to look at the benefits, the way we look at it, the byproducts as benefits. It's a good thing also. As an entry point, it's a good thing. What's important is that there should also be an understanding of the full length and breadth of it, and not just this, so that it's not limited to this. A bigger problem with that is that when the Western world starts to look at yoga as that, because then it's further misconstrued. So recently yoga has been a global phenomenon, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि yoga is losing its essence. क्या ये सही है? कुछ हद तक हाँ, बट कुछ I won't give an absolute yes or no to it. Okay. Because it's like that. In some people's minds, yes, it's losing the essence. In some others, there's also a fraction that is also getting deeper into it. So there's no absolute yes or no to it. It's just some people really are getting into yoga as the ancient practice is. And trying to understand what it truly means, understanding the spirituality behind it also, the off-the-mat practices and not just the on-the-mat practices. And for some, yes, it is losing its essence because of so much of information available on the internet. जैसे आपने अभी बोला कि योगा को लोग सोचते हैं एक फिजिकल एक्सरसाइज है, सिर्फ इतना ही समझते हैं, तो ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट क्यों करता है? ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करने का थोड़ा सा हिस्ट्री भी है एक तरीके से। ये कि काफ़ी टाइम तक हमारे देश में योग को इतना वैल्यू नहीं मिला। बहुत टाइम तक नहीं मिला। बहुत टाइम तक नहीं मिला, है ना। तो एक लॉस्ट विजडम था ये काफी टाइम तक। अभी बहुत रिसेंटली दोबारा स्टार्ट हुआ है। बहुत रिसेंटली, लास्ट 15-20 इयर्स हैज कम अप लाइक एनीथिंग। एग्जैक्टली। उससे पहले लोग जो करते थे योगा वो बहुत आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उनको। एग्जैक्टली। अब उसमें समझते हैं उस टाइम पे क्या हुआ। उस टाइम पे योगा का काफी वेस्टर्नाइजेशन हुआ, है ना। सो बेसिकली हमारे कुछ ऐसे टीचर्स हैं
जो वेस्ट में जाके जिन्होंने सिखाना शुरू किया. जी फॉर एग्जाम्पल हम कृष्णाचार्य के डिसाइपल्स की बात करें, है ना, जी अयंगर जी ने स्टार्ट किया. और हमारे विष्णुदेवानंद शिवानंद के टीचर हैं, विष्णुदेवानंद जी ने स्टार्ट किया वेस्ट में जाके सिखाना. और टीचर्स थे जिन्होंने वेस्ट में ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी स्टार्ट करी. अब जब वेस्ट में ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई तो ये काफ़ी हद तक एक लिमिटेड बॉडी फिजिकल मूवमेंट की तरह हुई, क्योंकि उस लेंथ एंड ब्रेड्थ तक समझाना वेस्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है जी ना, एक बहुत मेजर लैंग्वेज बैरियर है. ऑल द एंशिएंट नॉलेज इज इन संस्कृत. So how would teachers, even the best of teachers from India, would have found it very difficult to explain it to the West what it truly means. For example, when we talk about prana is loosely translated as life energy. There are so many words that do not have direct translation in English. So they must have found it difficult. So it was, I'm sure the intention was very right. It's just that the West took it as a very physical practice. West started teaching it. Now the problem with us is that whenever West does something, we find it cool. So we started taking it from the West, that this is a practice that originated in India and they are doing it. Looks very nice. So Trendy we should हो also जाता है. trendy हो गया. Looks very जी. nice. We should also do it. तो चलो करते हैं. क्यों? क्योंकि वो योगा पोजेस बड़े सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, करने में, लोगों को करते हुए देख रहे हैं. It's very fancy to look at people do such beautiful feats with their body. So they started looking at it as that. And yeah, but thankfully, I mean, a lot of teachers now understand the depth. And what are the common misconceptions about yoga in the modern times? One of the misconceptions is this that we spoke about, the physical part of it. exercise सिर्फ. Yeah, that it's just a और physical क्या है? exercise. उसके अलावा, a lot of people think that if you really start to go deep into the world of yoga, you have to live like a saint or somebody who has left a lot of things, a lot of sacrifice. It involves a lot of sacrifices. Yes, it does to an extent, बट ऐसा नहीं होता है कि आपको योग करने के लिए और योग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक साधु ही बनना पड़ेगा. आपको अपना परिवार छोड़ना ही पड़ेगा, आपको अपनी डेली लाइफ की काफ़ी चीज़ें छोड़नी, ऐसा नहीं होता है. आप वो सब करते हुए भी ये कर सकते हो. ब्यूटी तो यही है. कई लोगों को लगता है कि नहीं, अगर सच में योगा प्रैक्टिस करना है, मुझे भी काफ़ी टाइम तक लगता था कि माउंटेन्स में जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहाँ रह के करेंगे, योगशाला होती हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ रह के प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छे से होगा, घर में नहीं हो सकता. एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि घर में नहीं हो सकता, क्योंकि हम वो डुअलिटी ले आते हैं अपने अंदर उसके. और उसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो उसको बेसिकली हमें ये लगने लगता है कि एक शांत माहौल चाहिए एक्सटर्नल टू बी एबल टू फॉलो दीज इंटरनल प्रैक्टिसेस. नाउ द ब्यूटी ऑफ दीज इंटरनल प्रैक्टिसेस is that it can actually be done anywhere. I'm saying it can be done anywhere, but हम मोस्टली देखते हैं जो भी योगा की रील्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, वो एक माउंटेन बैकग्राउंड है एंड हम पूरे ग्रीन ग्रास पे बैठ के उसको योगा कर रहे हैं. तो हमेशा ऐसा क्यों डिपिक्ट किया जाता है? क्योंकि उसके भी अपने फायदे हैं, ये भी समझना पड़ेगा. नेचर से जब आप कनेक्ट में होते हैं, सो नेचर का अपना एक अलग स्ल्यू ऑफ बेनिफिट्स हैं. एड ऑन है हमारे. हाँ, वो मतलब वो एड ऑन भी क्या है मैं आपको बोलूँगी, तो वैसे देखा जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस है. वी आर, दिस बॉडी इज ऑल्सो नेचर, है ना, वी आर ऑल्सो नेचर. सो गोइंग बैक टू नेचर, कनेक्टिंग विथ नेचर, जो आप बोल रहे हैं वो ग्रास और वो माउंटेन्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. दैट मीन्स वी आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हम योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे को अपनी लाइफ से कुछ भी ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है. नहीं, हम किसी भी कंट्री में, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम योगा को सही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हम उसी जगह पर कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एक बहुत बड़ा और मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि दिन के 1 घंटे योगा की प्रैक्टिस होनी चाहिए. जी, है ना. डेफिनेटली सब लोग ये सोचते हैं इट्स लाइक अ क्लास कि 1 घंटे की क्लास पे तो जाना ही है. हाँ, मैं कह रही हूँ 1 घंटा से नहीं होगा. आपने दिन के 24 में से 1 घंटा क्या किया और बाकी के 23 घंटे क्या किए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो योगा इज़ नॉट अ प्रैक्टिस दैट इज़ डन ओनली ऑन द मैट. इट्स अ लाइफस्टाइल प्रैक्टिस.
आप on and off the mat 24 hours of the day, you are a practitioner. You do not lose that practice. It's not something that you have to take out an hour for. So it's a lifestyle change. So sacrifice जो मैं कह रही थी होता है, हाँ वो यहाँ होता है. कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में से सैक्रिफाइस करते हो फॉर दिस, कि आपको, क्योंकि अब आपको समझ में आने लग गया है कि मेरी लाइफस्टाइल में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. फॉर दैट यू मेक सर्टेन सैक्रिफाइसेस, बट दैट यू डू ऑन योर ओन by choice. The ancient texts are not telling you to forcefully do it. Do it if you are willing to do it. If you really want to progress on this path, do it. Otherwise, if you're fine with where you are, that's fine. Continue doing whatever you're doing. So it's not something that is being imposed, but it needs to happen willingly. It should come from within. ऐसे नहीं कि किसी ने बोला है तो करना है तो चलो करते हैं. लुकिंग एट टुडेज लाइफ, जैसे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बहुत स्टैग्नेंट लाइफ है, बहुत बिजी हैं आजकल. उनको योगा कैसे हेल्प कर सकता है और वो कब कर सकते हैं? Good question. So in your question, I would understand that when you say yoga, you basically mean the physical aspects of it, yes. Right? So in a stagnant life, first of all, whoever wants to practice needs to understand why practice. Otherwise तो फिर अगर why नहीं समझ आया तो you wouldn't have the motivation to do it. अगर आपको लग रहा है कि आप बैठे हैं और आपको कुछ भी बॉडी में दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको मोटिवेशन ही नहीं है प्रैक्टिस करने का. दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा why yogic practices, why not something else. Of course you can do anything else, but the reason that I would press on yogic movement practices for stagnant life is that when you are stagnant for a very long time and you are, let's say, working on a laptop and talking to people virtually, you're very disconnected from yourself. Disconnected from the social life at all. Exactly. And also from the self also. So you do not know what's happening to you in your body. Right. You do not know what's happening to you. You would feel nervousness, आपके हाथ में पसीना आने लगेगा, आपको समझ नहीं आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है ना. कोई भी मूवमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे, फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे. योगिक मूवमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे, मेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे. ऑलराइट. हाँ, मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिम के मेंटल बेनिफिट्स नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स उसके भी होते हैं, बट द डिफरेंस हियर इज दैट योगा विल टीच यू हाउ टू स्टे काम इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. आप सारा टाइम तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारा टाइम तो ब्रेथ वर्क, प्राणायाम पूरा दिन नहीं कर सकते हो बैठ के, अनुलोम विलोम ना, कुछ एक टाइम कर सकते हो. बट जितना भी टाइम आप करते हो या फिर जितना भी टाइम आप आसना प्रैक्टिसेस करते हो, दैट टाइम टीचेस यू टू बी calm in the rest of the time also. So all that right. is, now coming to what they can do is, first of all, they have to identify what is the problem. If the problem, let's say, if they're sitting stagnant and they're feeling restless or out of breath, they can do breath work practices. Right. Let's say if they are feeling very fidgety, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, बॉडी में रेस्टलेसनेस फील हो रही है, दे कैन डू सम आसना प्रैक्टिसेस लाइक अ मूवमेंट. जैसे इफ पॉसिबल विन्यासा प्रैक्टिसेस. विन्यासा में फास्ट विन्यासा, कि विन्यासा बेसिकली फास्ट विन्यासा इज अ फ्लो. ऑलराइट. हाँ, इफ somebody has taught you and you know how to flow. Now vinyasa is an intermediate to advanced practice, as in somebody needs to teach you how to do it, or you should have spent enough time to understand how to do it. Let's say you don't know what to do. कुछ भी मत करो. Wherever you are, just sit there for a moment. Deep breaths. मैं कह रही हूँ आपको ब्रेथ वर्क भी नहीं आता है, आपको किसी ने नहीं सिखाया अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, है ना, आपको नहीं पता प्राणायाम कैसे करते हैं कहते हैं, तो मैं कह रही हूँ कुछ भी मत करो, आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो. ओके. बस स्लो डाउन हो जाओ थोड़ी देर के लिए. उसके बाद आप बेसिक मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके स्पाइन की डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं. फ्लेक्शन, ये स्पाइन है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एक्सियल एक्सटेंशन विच इज टूवर्ड्स द स्काई, लैटरल. आप अपने स्पाइनल मूवमेंट्स कर लो, बेसिक स्पाइनल मूवमेंट्स. यू विल फील रिफ्रेश्ड फॉर सम टाइम एटलीस्ट. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है लेट्स से, तो इतना तो ये तो बेसिक है कि आप फॉरवर्ड की तरफ थोड़ा सा थोड़ी देर आ जाओ. ये बेसिक होता है ना, कि आपने कभी नोटिस किया है कोई बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कुछ सैडनेस होती है, कुछ होती है, तो आप ऐसे करके, छोटे बच्चे भी होते हैं वैसे करके बैठ जाते हैं. right. क्योंकि वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है टू लेट गो ऑफ the sadness that you might have or the stress that you might have, to basically come back to
योर न्यूट्रल स्टेट। या फिर आप कर लो थोड़ा सा बैक बेंडिंग, हार्ट ओपनिंग। हार्ट ओपनिंग से बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है। हम बॉडी में कई जगह स्टोर करते हैं इमोशंस। यू कैन बेसिकली टेक योर हैंड्स अप एंड एक्सपैंड योर आर्म्स, ओपन योर आर्मपिट रीजन। यहाँ पे हम बहुत एंक्शियसनेस स्टोर करते हैं, नर्वसनेस स्टोर करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टोर करते हैं। सो बेसिकली एक्सपैंड योर आर्मपिट्स, तो हम उसको रिलीज करते हैं, हम वो इमोशन रिलीज करते हैं। ओके। हाँ, एक्सपैंड योर चेस्ट, सैडनेस भी रिलीज करते हैं जब व्हेन वी एक्सपैंड द चेस्ट। सो यू डू दीज वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस। लैटरल स्ट्रेचेस करेंगे तो आपका पूरा लैटरल बॉडी, लैटरल चेन स्ट्रेच होती है। जी। You'll feel better, you'll feel nicer, बिकॉज आपकी स्पाइनल हेल्थ के लिए ये सारे मूवमेंट्स जो मैं कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग में कहते हैं you're only as young as your spine, है ना। If your spine is not functioning properly, that means you're aging faster. So spine का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉरवर्ड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल, एक्सियल। मतलब ये है योगा की प्रैक्टिसेस से हम सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल बैलेंस भी बना सकते हैं और मेंटली हेल्दी भी रह सकते हैं। Yes. प्लस योगा थोड़ा टाइम करके हम पूरे दिन को अपने बेटर बना सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। तो एक चीज और मेरे दिमाग में आती है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ योगा, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है जब पीपल बोलते हैं कि योगा हैज फेल्ड अस? I think yes. I would reply to that as a yes, because see, it's not a problem that yoga is commercialized. I think it's important to actually provide this as an offering. The problem is that when you do it just for money. Yes. See, it's an ancient science which should be looked at wisdom, which should be passed on as such, with the right intentions. Intention of passing wisdom and value. हाँ. So आपका intention, basically, if your intention of passing that down, let's say you are my student, if I'm teaching you yoga, my intention is that you should feel your best. My intention is not how much money you're giving me. Right. My intention, the money you're giving me is only for the time that I'm spending with you. But my intention should always be your betterment. Should always be the world's betterment, and not just yours, by the way. See, this is the beauty of it. When you are learning yoga, it's not just your life that is getting benefited. People around you are going to feel that change. You're going to become a better person, a calmer person in general. You're going to show up as a better husband. You're going to show up as a better father. You're going to show up as a better boss. So imagine the whole vicinity, your whole community is going to feel that change. I should have that in mind as a teacher. If I have that in mind, in that case, I'm passing down the right wisdom to you. I am not just worried about आज के घंटे में क्या करा दें, ये घंटा पास होना चाहिए, ये नहीं है मेरे दिमाग में, है ना। मेरे दिमाग में ये है कि आपकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। अगर वो इंटेंशन से है तो ठीक है, बट अगर वो इंटेंशन नहीं है तो फिर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस आते हैं। क्योंकि फिर आपका बेसिकली क्या है, हम एक मार्केटिंग से आपको भी पता है, वैल्यू प्रोपोजिशन बनाते हैं, है ना। वैल्यू प्रोपोजिशन होती हैं, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन चेंज हो जाएगी इफ यू आर सेलिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप बोलोगे 6 days and you'll have the best skin of your life. If you're selling yoga as that, of course there are going to be more misconceptions. You're feeding into the misconceptions, है ना। आप बोलोगे आप ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस इतने दिन करो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ऐसे किसी भी चीज़ का ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो किसी को कि आप ये पोज करो एवरी डे। इससे आजकल बड़ा चल रहा है कि बोलेंगे आपको एक ये पोज है या फिर 4 पोजेस हैं, आप रेगुलर करो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कैसे हो जाएगा वेट लॉस? वेट लॉस मजाक थोड़ी है। वेट लॉस ऐसे नहीं हो जाता कि आप एक पोज, आप बाकी टाइम क्या खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी, आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, बहुत चीज़ें होती हैं। एक पोज में आपको बोल दूँ ये 4 पोज आप रोज करोगे, आप पतले हो जाओगे, ऐसे ऐसे हिलो, ऐसे ऐसे हिलो, पतले हो जाओ, नहीं होगे है ना। तो यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शंस हम फील करते हैं। कमर्शलाइजेशन इस तरीके से
हार्मफुल है योगा का, क्योंकि कई लोग आजकल योगा को एज ए वेट लॉस भी सोचते हैं कि डॉक्टर ने बोला है वेट लॉस करना है तो योगा कर लो, हो जाएगा, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अभी तो योगा को मार्केट करा जाता है ना, हाँ, वेट लॉस के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, जो लोगों को Exactly. चाहिए उसको वैसे मार्केट किया जा आपने रहा है। हाँ एग्जैक्टली आपने वैल्यू प्रोपोजिशन आपने ये समझ लिया कि मार्केट का ये स्ट्रेस पॉइंट है, मार्केट को ये चाहिए तो चलो फिर ये बेचते हैं। वो सिर्फ अपना कमर्शियलाइज करके उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि एक्चुअली नहीं Exactly. करना चाहिए। एग्जैक्टली आपका ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमेटिकली होंगे, स्किन अच्छी होगी, बॉडी अच्छी होगी, लाइफ अच्छी होगी, सब कुछ होगा, बट what are your intentions behind offering this? इस यंगर जनरेशन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बर्नआउट की, Yes. उसमें योगा कैसे हेल्प कर सकता है? Very good question. This is actually a very important question also, because burnout, I see so many people around me facing this, and I would be very honest, there was a time when I was also burnt out. ओके, पहले तो समझते हैं बर्नआउट क्यों होता है। बर्नआउट इसलिए होता है when we basically start to prioritize something else over ourselves. अपनी हेल्थ, अपनी लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी Everything, अपने हाँ। काम को दे दी या किसी Correct. और को दे दी। एग्जैक्टली है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू टेक अ बैक सीट, कि बॉस ने बोला है ये काम आज इतने बजे तक देना है तो आज इतने बजे तक देना है, मैं खाना नहीं खाऊंगी ये करने के लिए, है ना, मैंने खाना खा लिया तो मुझे नींद आ जाती है तो मैं आज ये काम कर लेती हूँ, ओ नींद आ रही है, आई हैव सेवरल कप्स ऑफ कॉफी एंड आई फंक्शन वेल, है ना। राइट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि आपके लिए वो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वो कल की पिच जानी है सेल्स की, वो इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं सोच रहे हो आपकी बॉडी का आपके साथ आप क्या कर रहे हो, ओवर एंड ओवर वंस इन अ व्हाइल आप कर रहे हो, समझ में आता है, आप ओवर एंड ओवर सेम चीज कर रहे हो, नाउ यू आर फॉलोइंग इनटू अ पैटर्न। ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दीज प्रैक्टिसेस इज दैट इट मेक्स यू लुक बैक, व्हाई आर यू डूइंग इट, ओके, why am I, let's say if let's say I'm a workaholic, why am I a workaholic? Either I'm trying to prove something to the world, validation Right. issues, है ना, मुझे किसी का वैलिडेशन चाहिए कि मुझे मेरे बॉस कह दे कि हाँ दिशा तू बहुत अच्छा काम करती है, या फिर मनी, मुझे लग रहा है कि मेरे पास पैसे कम है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, शायद मैं ये करूँगी तो मेरे अगले अप्रेजल में अच्छे पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं लाइफ में बेटर हो जाऊंगी, या फिर कंपटीशन और जेलसी, मेरी उस फ्रेंड की सैलरी मुझसे ज़्यादा है जी, मुझे काम करके आगे बढ़ना है, मेरी सैलरी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, एग्जैक्टली, मुझे पहले प्रमोशन चाहिए, है ना। ये सारे ड्राइवर्स होते हैं जिसकी वजह से हम करते हैं। कई केसेस में, अच्छा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही ऐसा होता है, कई केसेस में बहुत जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, मेरी फैमिली है, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, जी, मेरे पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है ना, ये सभी रीजंस होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट आज की जनरेशन का अगर देखा जाए तो एटलीस्ट सर्वाइवल मोड सॉर्टेड है ना, सर्वाइवल इज सॉर्टेड फॉर देम, इतना डिफिकल्ट नहीं है सर्वाइवल। आई रिमेंबर इन माई टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था, लाइक वी हैड टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर सर्वाइवल, बट नाउ सर्वाइवल एटलीस्ट फॉर दिस जनरेशन इज सॉर्टेड। नाउ most of the things are motivated by ambition or competition. competition is the most हाँ, common thing and the luxury they want in no time. मुझे आईफोन आज ही लेटेस्ट ही चाहिए, आज आज ही ही चाहिए, ब्लिंकिट से ऑर्डर करेंगे अभी आएगा, है ना, राइट, हर एक चीज तुरंत चाहिए। अब ये करने के चक्कर में आपने बर्नआउट कर दिया। ये जो चीजें आप एंजॉय सच में करना चाहते हो या आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइफ में ट्रू एंजॉयमेंट क्या होता है वो आप नहीं कर पाओगे, पहली बात तो, क्योंकि आप तो बर्न आउट हो गए। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है एंशिएंट प्रैक्टिसेस में? सबसे पहले जब बर्नआउट होता है तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये समझते हैं, व्हाट्स हैपनिंग टू योर बॉडी नाउ। बेसिकली यू आर ऑलवेज फंक्शनिंग इन अ स्ट्रेस मोड। जी, हाँ, आप नोटिस करना जो ज़्यादातर केसेस में जिनको बर्नआउट होता है उनका ब्रेथ शॉर्ट हो जाता है, छोटी छोटी ब्रेथ्स लेंगे ओके, और मैं कह रही हूँ उनका ही तो क्या, ज़्यादातर लोगों का आज की डेट में छोटी ब्रेथ्स हैं, हाँ, शैलो ब्रेथ्स हैं, हम पूरी फुल डीप ब्रेथ्स लेते भी नहीं हैं, वो ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग ऑन दैट शॉर्ट ब्रेथ, that means you're constantly in a stress mode. If you're constantly in a stress mode, your body is not getting the time to heal. and up to a time they don't even realize that. हाँ, वो realization नहीं होगा।
क्योंकि क्या होता है अच्छा, स्ट्रेस की एक बड़ी फनी थिंग होती है, स्ट्रेस बॉडी को अच्छा लगता है। ओके। स्ट्रेस हमें अच्छा लगता है, स्ट्रेस की आदत पड़ जाती है। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हम प्रेशर में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की आपको आदत पड़ सकती है। वी हैव इवॉल्व फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना। हंटर एंड गैदरर्स की जो लाइफ थी वो कांस्टेंट, उनको बेसिकली सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई थ्रेट से बचना होता था, है ना। तो वो अब शेर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, आपको नहीं पता है कुछ भी चीज़ें। तो फंक्शन करने के लिए हमेशा एक्टिव अलर्ट रहना पड़ता था। वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज दैट इन अ वे हमारी डीएनए में भी है ये, दैट वी ऑलवेज फाइंड स्ट्रेस इफ देयर इज नो स्ट्रेस। ओके। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, मैं कह रही हूँ, मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। लाइफ में कोई प्रॉब्लम, और मैं ये कह रही हूँ अभी भी कई बार हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको, देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टेज दैट यू अचीव। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू फाइंड प्रॉब्लम्स बिकॉज यू वांट स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस नहीं था, चलो कुछ स्ट्रेस ढूंढ के लाते हैं, है ना। कुछ तो चाहिए टेंशन लेने के लिए, कुछ तो चाहिए टेंशन लेने के लिए। ये मेरे बॉस ने उस दिन मुझे ऐसे क्यों बोल दिया था, ये अब चलो इसको एनालाइज करेंगे। जरूरत नहीं थी उस बात को एनालाइज करने की, बट हम उसको चलो बैठ के एनालाइज करेंगे। तो हम ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स लाइफ में। अब जब ये, हाँ, तो बेसिकली कमिंग बैक टू हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वी आर ऑलवेज लिविंग इन दैट stress mode, which is from the nervous system perspective is also called the sympathetic nervous system mode. Okay. अभी sympathetic nervous system या parasympathetic nervous system दोनों में से एक ही एक्टिवेटेड हो सकता है एक टाइम पे, पर आपने तो कॉन्स्टेंटली अपना ब्रेथ शॉर्ट है, आपका बेसिकली ध्यान ही नहीं है इस चीज़ पे कि आप कैसे सांस ले रहे हो, तो आप कॉन्स्टेंटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो। योग से, योगिक प्रैक्टिसेस से you can activate your parasympathetic nervous system. When you do that, now you're entering the healing mode, the rest mode. Okay. Which is very important for you, for your body to function properly. अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन भी नहीं कर सकती है। समझ गए, है ना। बहुत सारे बॉडी में हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो रिलीज नहीं होंगे। हमारी बॉडी को डाइजेशन करने के लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए होता है जी। अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, विच मीन्स हमारा सारा फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द लिम्स, द वाइटल ऑर्गन्स गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं है। नोटिस किया होगा लोगों ने, बर्नआउट का इशू जिनको होता है उनका पेट खराब रहता है, या तो कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन। ओके। क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये चीज़, ये वाइटल ऑर्गन्स का ध्यान हमारी प्रैक्टिसेस रखेंगी। तो योगा से ये हेल्प मिलती है कि हम अपने आप को क्वेश्चन भी करते हैं और अपने आप को इनसे रिलीव भी करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस, है ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, जब सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो तब आपको अपना डीपर समझ में आने लगता है कि ये मैंने ऐसे किया, ये क्यों किया होगा, वेयर वाज इट स्टेमिंग फ्रॉम, how can I look at the problem at its root and nip it at the bud. वहाँ पे कैसे, रूट से कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ऊपर वही वाली बात है कि दवाई दे देते हैं, सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के कॉर्पोरेट कल्चर में ये बहुत डिफिकल्ट काम हो गया कि लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इस लेवल तक भी आए कि वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या इजी वे है कि वो कहीं से कुछ स्टार्ट करें और कम से कम इस लेवल पे रहें कि अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम हेल्दी भी हैं काम करते हुए। करेक्ट। सो आई थिंक ये काफ़ी हद तक ऑलरेडी होने भी लग गया है, क्योंकि एंड भले गलत रीज़न से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन होने लग गया है। लोगों को बहुत ऑब्सेशन है अपने लुक्स से जी, है ना। अब अच्छा दिखने के लिए तो प्रैक्टिसेस भी रखनी पड़ेंगी, इनर ब्यूटी चाहिए। हाँ, इनर ब्यूटी आएगी तभी एक्सटर्नल ब्यूटी आएगी, है ना। तो वो इनर ब्यूटी तो अब थोड़ा बहुत लोगों को ये समझ में भी आने लगा, जितना मैं देखती हूँ, मतलब इनफैक्ट इवन द यंग जनरेशन, in an attempt to achieve that outer beauty, they are getting inside. हाँ, तो वो पाथ कहीं ना कहीं वो पकड़ना शुरू कर रहे हैं, which is nice. At least whatever the intention is, it is going in the right direction. तो वो चीज़ हो रही है।
अच्छा, इस केस में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये समझना कि इसको भी विलेनाइज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर कोई बोले कि मैंने लेट्स से आई एम डूइंग दिस फॉर टू लुक नाइस, लेट्स से टू लुक अ सर्टेन वे, इसको भी विलेनाइज करने की जरूरत नहीं है। इट्स फाइन इफ दैट बिकम्स एन एंट्री पॉइंट फॉर समबडी, इफ दैट्स अ मोटिवेशन, इट्स फाइन, वहां से एंट्री करते हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हाँ, एंट्री तो हो गई एटलीस्ट इस दुनिया में, ये योग की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में एंट्री तो हुई, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली कैसे होता है। इफ यू it all starts with rest. If your body is not getting enough rest, it cannot enter into the higher states. एटलीस्ट उसने एंट्री कर लिया तो एक चैप्टर समझ लिया। हाँ. अब वो बाकी के चैप्टर्स को देख सकता है, उनको समझ सकता है, and he can go on and on. हाँ, एग्जैक्टली। मे बी एंट्री पॉइंट ये भी हो सकता है कि हाँ, कितना सुंदर लग रहा है ये पोजेस करते हुए इंसान, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, करके देखते हैं, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंट्री पॉइंट कुछ भी हो, आप पाथ में अगर एंटर कर रहे हो, which is what is important here is that there should be, I hope that there are more and more people, teachers, yoga teachers, who are there to hold hands of these people and really take them deeper. Surface level पे ना छोड़ दें उन्हें कि वेट लॉस हो गया चलो खत्म, है ना? बिल्कुल ठीक है। I have had this experience. 15 साल पहले मेरे को बहुत मेजर sciatica and back pain था, and luckily I found a योगाचार्य जिन्होंने पूरी प्रैक्टिस मेरे को नॉर्मल कराई, बैक पेन से फोकस नहीं थे, उन्होंने पूरा योगा मुझे सिखाया एंड इट वैनिश्ड इन 6 months. सो मुझे किसी ने गाइड किया था कि आप एलोपैथी पे ना जाकर योगा प्रैक्टिस करो, उसे परमानेंटली डिलीट होगा, एलोपैथी में वो बार बार आता रहेगा। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली इट वैनिश्ड। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे योगा में एंट्री कराई एंड आई प्रैक्टिस फॉर लाइक 7 years. अभी फिर इरेगुलर हो गया हूँ, बट आफ्टर मीटिंग यू आई थिंक I'll start again. Yes, I'm grateful to that teacher also because we need more teachers like that. We need more teachers like that. But जैसे वो शुरू हुआ था, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या होते हैं। We are into business and we are entrepreneurs. टाइम नहीं है, काम करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि किसी चीज का ध्यान नहीं रख रहे। प्लस उस टाइम नहीं होने की वजह से ना हमारे रिलेशनशिप्स विद आवर फैमिली फ्रेंड्स वो भी बहुत मेसी कंडीशन में होते हैं, दे आर नॉट सॉर्टेड। वहां पर योगा कैसे हेल्प करता है, कैसे आपको इस माइंडसेट से जाना चाहिए कि हम इसको सब कुछ सॉर्ट कर लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ दिस। टाइम नहीं है किसी के पास नहीं है। मैं ज्यादातर लोगों से जब मेरी बात होती है कि योगा से रिलेटेड, मेरे फ्रेंड्स ही हैं कई जो कहते हैं कि करना चाहते हैं दिशा, पर टाइम नहीं है। अभी टाइम, पहली बात तो ये समझते हैं योगा आपका टाइम एक्सपैंड करेगा। ओके। आपका टाइम कम नहीं करेगा। टाइम इज एन इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट, वी अंडरस्टैंड दैट, उतना एस्टैब्लिश्ड है, राइट? इन टुडेज वर्ल्ड क्वांटम फिजिक्स ने भी एस्टैब्लिश कर दिया है टाइम इज एन इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट। आपकी, अच्छा चलो उतनी डीप बात नहीं करते हैं, सिंपल आते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कई बार आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको करने में मजा आ रहा है, यू आर मोर एफिशिएंट। यस, है ना, यू आर मोर एफिशिएंट। आपने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, आप उनको देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार पता नहीं इतना काम कैसे कर लेता है, इसके दिन में 48 घंटे लगता है। एग्जैक्टली। ऐसे लोग देखे हैं, है ना? वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज को अलाइन करके ये समझ लिया कि कम टाइम में ज्यादा कैसे अचीव किया जाता है। वो आपको योग सिखा सकता है। योगा opens that door. It opens that portal. Yes. To understand how to expand time, कि इतने लिमिटेड टाइम में ही आपके पास टाइम लेट्स से वही है ना? लेट्स से आप फिजिकल रैम में आपका कैलेंडर के हिसाब से आपके पास 24 घंटे ही हैं। वही 24 घंटे बाकी इंसानों के पास भी, जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं उनके पास भी वही है, आपके पास भी वही है। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दो? आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो। वो प्रैक्टिसेस आपका टाइम लेती नहीं है, आपको टाइम और देती हैं। ये मैं बताना चाहूँगी वो सब लोगों को जो ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। you'll understand how to manage that time more efficiently.
हाँ फिर तो हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में सबसे मेन योगा को डाल देना चाहिए। बिल्कुल डालना चाहिए। मैं कह रही हूँ स्कूल्स में सिखाओ, MBA स्टूडेंट्स को प्लीज सिखाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सी मतलब लीडर्स बनेगी अगर ये जनरेशन आगे जाके, और होगी भी अभी आज की डेट में कई लोग, जी तो वो लीडरशिप के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको ये समझना। क्योंकि आप यू कांट बी अ गुड लीडर इफ यू डोंट, if you have not aligned your own energies, and if you do not understand how to stay calm in very stressful situations, how can you be a good leader? एग्जैक्टली है ना, we see so many leaders आजकल इतना common हो गया, and it's so sad that most of the work cultures are very toxic Right. Whether these bosses, they would shout at you, and it's very common to to utter the abusive words also in meetings, especially for sales people. I'm sure a lot of sales people who are watching this would realize कि उनकी लाइफ में तो ये बहुत ही कॉमन है, उनके गाली के बगैर उनकी बातें नहीं होती उनके बॉसेस के साथ। टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, हाँ है ना, तो अब आप वो काम प्रेशर में करा लो, या अब वही काम उनसे एफिशिएंटली करा लो बिकॉज वो पैशनेट है इसलिए करा लो। अभी कुछ दिन पहले आनंद महिंद्रा का बड़ा अच्छा मेरे को मेरे हस्बैंड ने दिखाया था, एक इंटरव्यू था जो वो स्पीच अपनी दे रहे थे कि मुझे मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, आपका आउटपुट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्योंकि दैट्स अ गुड लीडर, दैट लीडर अंडरस्टैंड्स कि मैं प्रेशर में नहीं करा सकता इनसे काम। मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम्हें तो हफ्ते के 60 घंटे काम करने पड़ेंगे, तुम काम करो, तुम्हारे घंटे मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा काम क्या आ रहा है। तो लीडरशिप स्किल्स सीखना भी एक तरीके से ये सिखा सकता है। एग्जैक्टली जैसे ही आपने बोला ना कि वो आपको टाइम ज्यादा देता है। अभी रिसेंटली देयर वाज लाइक दिल्ली दोसांझ के कॉन्सर्ट चल रहे थे, कॉन्सर्ट एंड मैं देखता था इतनी एनर्जी उसमें, ऑल द टाइम ही इज जंपिंग अराउंड, सिंगिंग एवरीथिंग। एंड उनका मैंने एक रील भी देखा जिसमें उन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ एक रिग्रेट है कि मैंने ये योगा बहुत देर से शुरू किया, पहले क्यों नहीं किया। जो भी आप करते हैं लाइफ में वो आपकी उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, ये बोला था दिलजीत दोसांझ ने। कितनी सही बात है, क्योंकि उनको समझ आ गया प्रैक्टिस करके, जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक के बाद एक ऑल इंडिया उनके कॉन्सर्ट्स हुए, अरे अभी वो मोदी जी से मिले जी, कितनी एनर्जी उनमें नजर आती है, मैं आपको बता नहीं सकता। एग्जैक्टली तो हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं लोगों को कि अगर एक आदमी इतना कुछ कर सकता है और वो कहता है कि ये मेरा योगा से अच्छा हो रहा है, योगा से ये पॉसिबल हुआ है, तो हमें भी योगा की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। आई थिंक दिस कैन बी एन एंट्री पॉइंट फॉर पीपल की, क्योंकि अभी है कि हमारी वर्ल्ड ऐसी है कि हमें सेलिब्रिटीज कोई चीज बोल देते हैं तो हमें अच्छी लगती है ना। द गुड थिंग इज दैट वी हैव सच सेलिब्रिटीज टुडे, राइट, है ना। a lot of female actresses are now propagating yoga, they are practicing yoga, उनकी रील्स आती हैं इंस्टाग्राम पे कि वो प्रैक्टिस करें। चलो आप उसी से कर लो, वही देखिए कि अच्छा कटरीना कैफ करती है तो मैं भी करूंगी। नॉट ओनली इंडियन, हॉलीवुड से भी आती हैं, हॉलीवुड से भी आती हैं कि योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें उनको इतना एफिशिएंट बनाती है। एग्जैक्टली। हाउ डू यू सी द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग और डिस्टॉर्टिंग द इमेज ऑफ योगा? Very beautifully put, that question. So yes, shaping and distorting both. Yeah. How is basically, like I said, there are a lot of Insta yogis, if we may call it, who will give you short fixes, weight loss, है ना, ये 4 पोज करो वेट लॉस हो जाएगा, मुंह में 4 तरीके से हाथ चलाओ आपका फेस सुंदर हो जाएगा, यू वोंट नीड बोटॉक्स, है ना। तो ये सारी चीजें आपको काफी कॉमन लगेंगी, दिखेंगी इंस्टाग्राम पे। मेडिसिन नहीं चाहिए, एलोपैथी नहीं चाहिए, आप ये एक एक्सरसाइज रिपीट कर लो। हाँ, एक एक्सरसाइज रिपीट कर लो। कई आपको दिखेंगे ऐसे, इट्स सो फनी and sad at the same time that a lot of people treat yoga as a gymnast trick. Okay. हाँ, आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को योगा टीचर्स हैं जो सिखा रहे हैं, खींच तान के लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्प्लिट्स दिलाने हैं, कैसे भी करके स्प्लिट की प्रैक्टिस में खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, बैक बेंडिंग में खींच के बैक बेंडिंग जबरदस्ती करा दी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो खींचातानी नहीं होती, कुछ प्रैक्टिसेस में होती है, जो बहुत स्किल्ड टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कैसे करना है। बट क्योंकि अब एक वो
बन गया है कि हमें कराना है। क्या करना है? वो पोज अचीव करना है, वो सुंदर सा स्प्लिट दिखना चाहिए पूरा जी अभी, वो सुंदर सा वो वृश्चिक आसन दिखना चाहिए पूरा। वो जी करने के चक्कर में मरोड़ दिया इंसान को है ना। अभी कितने ऐसे होते हैं जिनको इस चक्कर में इंजरी होती है, बच्चों को, छोटे बच्चों को। मुझे एक ऐसा केस सुनाया था किसी ने, मेरे ही एक योगा टीचर ने एक्चुअली, कि उनके पास एक पेरेंट आए, उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को स्प्लिट करा दो। छोटा बच्चा था, जी नॉट इवन अ टीन, छोटा Okay. बच्चा, स्प्लिट करा दो। उसके लिए वो रेडी थे कि उनका एक हिप से बोन कटती है, काट नॉट दीजिए। श्योर बोन कटता है, सम पार्ट कटता है, ओके वो काटने को वो तैयार थे, वो कहने remove कर काट दीजिए। दो। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली स्प्लिट में वो अटकता है, एंड जी। एनाटॉमिकली स्पीकिंग वो आएगा बीच में। तो उन्होंने बोला इसको काट देते हैं, ओवर स्प्लिट्स होने लग जाएंगे। वो कराने को वो तैयार थे अपने छोटे बच्चे के। तो क्यों? क्योंकि देख रहे हैं दुनिया को कर रही है, दुनिया बड़ा अच्छा लग रहा है, योगा स्पोर्ट्स दिख रहा है, पार्टिसिपेंट जा रहे हैं ना, कंपटीशन में जा रहे हैं, मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो वो उस चक्कर में अभी, क्योंकि सोशल मीडिया ने उसको और ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये आप कि देखने में भी अच्छा लग रहा है, करने में फेम भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, है ना, फेम भी मिल रहा है, और एक बना दिया कि ये अचीव करना है, एक गोल जैसा कि ये अचीव कर लेंगे। तो उस चक्कर में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ सुपरफिशियल अचीव करने के लिए आप ह्यूमन हाँ। बॉडी को ही हार्म कर रहे हैं। हाँ ऐसा कुछ चाइनीज एरोबेटिक्स या फिर हाँ बैलरीनास का देखा कि वो एक अपने टो की हाँ बोन को हाँ, ब्रेक कर देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा कर पाती है ज्यादा अच्छा कर बैलरीनास। पाते हैं, एग्जैक्टली। दैट मीन्स वो उसको योगा से रिलेट कर रहे हैं, या हाँ। फिर उन्होंने योगा, चाइनीज एरोबेटिक्स, जिम्नास्टिक और बैलरीनास को मिक्स कर सबको दिया, मिक्स करके एक नया एक्सपोर्ट जैसा बना दिया। एक्सपोर्ट बना दिया। हाँ, एक्सपोर्ट जैसा बना दिया। अभी सऊदी में कितना होता है कि यहाँ से इंडिया से योगा टीचर्स बुलाते हैं वो, क्योंकि एज अ स्पोर्ट उनको आगे बढ़ना है, योगा स्पोर्ट्स में उनको आगे बढ़ना है, तो वो यहाँ से बुलाते हैं, इंडिया से टीचर्स को बुलाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, पर्सनली मैं जानती हूँ जिनको, वो योगा टीचर है, उनको बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है उस बिजनेस में कितना डर्ट है ना। तो वो ये इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें योगा टीचर्स में। तो वो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जितने भी उनके एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको योगा सिखाएंगे, सिर्फ प्योर योगा, तो उनकी परफॉर्मेंस अपने आप बेटर हो जाएगी। नहीं तो वो फिर तो उसकी बात हो गई ना कि किसकी बुद्धि कितनी चलती है उतनी ही चलती है। अब या किस इंटेंशन से वो करवाना चाहते हैं। उनको तो फास्ट रिजल्ट चाहिए। योगा का गोल है ही नहीं, योगा का गोल ये है ही नहीं कि आपका सर के पीछे पैर चला जाए और फुल स्प्लिट्स हो जाए। गोल तो ये है ही नहीं, गोल तो कुछ और ही है। गोल स्पिरिचुअल है, पर इनको तो फिजिकल चाहिए ना। फिजिकल गोल करते हुए कई योगा टीचर्स ऐसे होते हैं जो शायद नहीं कर पाते बहुत बड़े बड़े पोजेस भी। जरूरी नहीं होता है, असली गोल तक पहुंचने के लिए ये सारे पोजेस जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हैंड स्टैंड कर लोगे तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा ना। ऐसा होता तो सारे जिम्नास्ट एनलाइटेंड होते, तो ये तो नहीं होता है। तो सोशल मीडिया इस तरीके से इसको थोड़ा एक्सप्लॉइट कर रहा है। हाँ, एक्सप्लॉइट कर रहा है, कहीं ना कहीं शेप भी कर रहा है। पर बहुत सारे गुड टीचर्स भी हैं who are spreading very good meaningful information on social media, which is helping people who are really seeking that information. Now here it comes back to what you're seeking, right? If I'm seeking that क्विक सॉल्यूशन, I'll get that. Algo बड़ा smart है social media का। See, social media is never the villain. It's all about your intentions. Algo बहुत smart है, मुझे क्या चाहिए मुझे तो वही दिख रहा है। मैंने अभी कल एक रिसर्च पर्पस के लिए मैंने एक ज्वेलरी का पेज खोला। अभी मुझे कल से आज तक ज्वेलरी दिखा रहा है पूरा इंस्टाग्राम, और कुछ नहीं दिखा रहा। अभी तो आपने ज्वेलरी का पेज खोला था। हाँ। अभी तो फोन सुनता भी है 24/7 कि आप क्या exactly. बात कर रहे हो। हाँ आपका इंटरेस्ट क्या, अगले दिन इंस्टा पे अपने आप दिखने लग जाता है। हाँ एग्जैक्टली। तो कम्स बैक टू व्हाट यू आर सीकिंग। तो अभी लेकिन गुड टीचर्स आर स्प्रेडिंग वेरी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मैं आपको कभी अपनी सोशल मीडिया फीड में दिखाऊंगी तो सच गुड इन्फॉर्मेशन, सम पीपल आर स्प्रेडिंग वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो वी आर ग्रेटफुल टू देम। वी आर ग्रेटफुल टू देम, एग्जैक्टली। Okay, what are the some lesser known aspects of yoga that have been lost or overlooked in modern times? There are a lot actually. So एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी काफ़ी ही लेसर नोन है। Okay.
बोलते हैं ना विल पावर चाहिए, जी। कैसे बढ़ाएं? विल पावर बढ़ाने का मैंने आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं देखा। मैं आपको कहूँगा विल पावर बढ़ाने का एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन योगा में बताते हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा में। प्रत्याहार। एक्सप्लेन। प्रत्याहार बेसिकली ऐसे आपका 8 लिम्स ऑफ योगा होता है, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होता है बाद में। प्रत्याहार इज द 5th लिम्ब। ओके। इन्फॉर्मिटीज ऑफ द, अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मिटीज ऑफ द बॉडी के लिए फर्स्ट 4 है, इन्फॉर्मिटीज ऑफ द हार्ट के लिए प्रत्याहार है, एक ट्रांजिशन की तरफ है, ट्रांजिशन की तरफ लेके जाता है। उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि, विच इज द हायर स्टेट्स वेर यू आर एबल टू मेडिटेट, एंटर मेडिटेशन, वो बाद में आता है। प्रत्याहार का बेसिक अगर ट्रांसलेशन लूजली ट्रांसलेटेड एज विड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस। ओके। विड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस का मतलब कि आपकी जो सेंसेस की एक्सट्रीम अर्जेस हैं, आप उसको रेस्ट्रेन करोगे, ठीक है। इसका निकालने को कोई गलत मतलब भी निकाल सकता है कि रेस्ट्रेन करना है मतलब जबरदस्ती फोर्स करना है, सप्रेस नहीं करना होता है। आपने उसके अधीन नहीं रहना है। अधीन, बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द आपने बोला है, आपने उसके अधीन नहीं रहना है ना, अपने सेंसेस की। तो यू टेक चार्ज ऑफ योर सेंसेस, सो इट्स नॉट जस्ट विड्रॉल, यू टेक चार्ज ऑफ योर सेंसेस। नाउ what happens when you do that is that over and over, if you keep doing something that you, let's say, okay, ulta, let's say if you really wanted to do something and you don't do it, you withdraw and restrain yourself in a way willingly. There's a part of your brain, usko bolte hain AMCC, mid cingulate cortex, anterior mid cingulate cortex. ये जो पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी विल पावर के लिए। ओके। दिस cortex of your brain gets activated every time you're doing something to restrain from your senses, restrain from your will. If you really, let's say you really wanted to eat that cake, but you restrain yourself, you're strengthening your willpower. You're strengthening this part of your brain, AMCC, okay, which is responsible for your willpower. All right. ये हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है। प्रत्याहार विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस है। व्हेन यू विड्रॉ फ्रॉम सेंसेस, ये हमें जैसे योगा स्कूल्स में ऐसे बड़ा बताया जाता था कि प्रत्याहार इम्प्रूव्स योर विल पावर। साइंस नहीं बताते थे। साइंस मुझे बहुत बाद में समझ आया इसका, that there is a neuroscience backing to pratyahar. Okay. Which is this, that this part of your brain, you're strengthening it by practicing pratyahar, and you can improve your willpower. The more you practice this, stronger your willpower. And see, this is so beautiful, and this is not being taught. This is awesome. Matlab, this can change the world this can change the world for people who are getting into depression or something and they need willpower. Exactly. But at the same time, I'll think कि अगर ये लोगों को रिवील करेंगे तो फिर इसको भी कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा। हाँ, मतलब करने को किया जा सकता है, but it'll have its own pros and cons. तो प्रत्याहार तक जाने के लिए हमारे को प्रॉपर योगा में स्टेप बाय स्टेप प्रत्याहार तक पहुंचना जरूरी है। यस, क्योंकि आप डायरेक्टली, लेट्स से मैं आपको बोलूँ डायरेक्टली प्रत्याहार प्रैक्टिस करने को मैं आपको आज बोल देती हूँ, अगर जैसे अब क्या है बड़ा फनी है, मैं ये भी बताती हूँ आपको, है ना जी। मैं किसी मतलब पर्टिकुलर को विलेनाइज नहीं करना चाहूँगी, बट आज की डेट में मैं भी एक टाइम पे इसकी विक्टिम बन गई थी, सच बताऊँ तो। कि मुझे लगा कि अरे सब बात करते हैं योगा में क्लासेस में कि ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, फिर मैंने देखा अच्छा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि योगा में ना प्रत्याहार की क्लासेस लो, क्योंकि आपको अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाना है कि नहीं, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, बट यू प्रैक्टिस एंशिएंट योगा, यू वांट टू शो योरसेल्फ एज दैट, प्रत्याहार की क्लासेस लो। तो शुरू में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हम बात तो सही प्रत्याहार की क्लासेस लेके देखते हैं। थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन किया तो समझ आया कि नहीं ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि क्या बोलूँ मैं लोगों को कि विड्रॉ कर दो सेंसेस से। आप क्या करोगे अगर मैं आपको ऐसे बोल दूंगी? तो सप्रेस करोगे, है ना? Exactly. 4 दिन नहीं करोगे वो चीज, 5वें दिन आपको इतना तेज मन करेगा वो करने का कि आप जरूरत से ज्यादा कर लोगे। तो क्या मतलब है मुझे आपको प्रत्याहार सिखाने का? कोई मतलब नहीं है। आई हैव टू टीच यू स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बोलूंगी कि आप आसना करो, पहले आसना से अपनी बॉडी को कंट्रोल करो, आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है ना? आपकी इमोशंस रिलीज होते हैं, स्टोर्ड ट्रॉमा रिलीज होता है, और करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हो गया तो हो गया, है ना? हम तो स्ट्रेस, वी कीप एक्यूमुलेटिंग दैट, स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड, वी कीप एक्यूमुलेटिंग इट। आप उसको रिलीज करते रहो। आपको एक मेथड ही पता है, आसना में भी वो भी बहुत बड़ा साइंस है अपने आप में, मेथड है, प्रैक्टिस है ना, जो आपने किया हुआ है। फिर प्राणायाम करो। आसना से पहले प्राणायाम नहीं आता है, आसना के बाद प्राणायाम आता है। आपकी बॉडी शुड बी रेडी फॉर दोज प्रैक्टिसेस। एडवांस प्राणायाम अगर करना है किसी ने तो उसके बाद प्रत्याहार आता है, क्योंकि अब आपको अपनी बॉडी में, और उससे पहले तो यम नियम भी आते हैं बाय द वे। यम नियम अपने आप में वो भी बहुत बड़ी चीज है। अहिंसा अगर मैं बोलूं, पहला यम होता है अहिंसा का मतलब प्योर अहिंसा होता है। फिर इफ आई लुक इनटू द मिरर एंड आई से ओ you look like this, you don't look pretty, that's ahimsa, that's violence. I'm doing violence on myself. If I say bad words to anybody, that's violence. I'm not saying hinsa is only when you go out with the churi in your hand and cut somebody's no, that's not hinsa. That is hinsa, but that's not the only definition of hinsa. तो वो सब आप जब ये करके पहुंचते हो इस स्टेज में कि आपको प्रत्याहार करना आता है, ऑटोमेटिकली विलिंगली आप कर सकते हो। इट्स नॉट फोर्स्ड ऑन यू। तो ये एक लेसर नोन बेनिफिट ऑफ योगा है। शेयर अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम एंशिएंट योगा जो कि आज के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारी हैं, मल्टीपल बताऊंगी, डिपेंड करता है कि क्या किसकी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं। आजकल के बच्चों को अटेंशन डेफिसिट बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा, है ना? कितने सारे पेरेंट्स होंगे जो ये देख रहे होंगे। एक प्रैक्टिस होती है त्राटक, ओके, विच इज कैंडल गेजिंग। इट इज वन ऑफ द षटकर्मास इन योगा, विच इज द क्लेंजिंग क्रिया। आईज के लिए होती है वैसे तो, कि आईज की क्लेंजिंग होती है। हाउएवर त्राटक is also really beneficial for increasing focus and concentration. थोड़ा elaborate कीजिए, बच्चे कैसे कर सकते हैं? हाँ, so basically you have to sit in a dark room, है ना? जैसे लाइट यहाँ बंद कर देंगे तो प्रॉपर डार्कनेस होनी चाहिए। एक कैंडल होगी जी, प्रेफरेबली घी का दिया होना चाहिए कैंडल की बजाय, बिकॉज कैंडल्स में आजकल केमिकल्स होते हैं। और बच्चे को कुछ नहीं करना है, आई लेवल पे रखना है पहले तो आपको उस बच्चे के, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आई लेवल पे, थोड़ी दूर पे, लगभग इतनी दूरी पे, 1 मीटर की दूरी आप समझ लीजिए, उससे थोड़ी सी कम भी चलेगी। बच्चे को बैठाना है, बच्चे को सिर्फ उसकी लौ, है ना, कैंडल की जो लौ होती है उस पे गेज, फ्लेम को गेज करना है। अच्छा, फ्लेम फ्लिकर करती है, फ्लेम का जो बेस होता है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखना होता है। एंड यू हैव टू ट्राई एंड लुक एट इट विदाउट ब्लिंकिंग योर आई, प्रेफरेबली विदाउट ब्लिंकिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली घूरना नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट गेज रखनी है आपको, कॉन्स्टेंटली उस पर देखते रहना है। आपके ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू आएंगे, जस्ट फाइन, थोड़ी देर में आएंगे। आप एक बार आंख बंद करो, दोबारा खोल लो, दोबारा कैंडल को गेज करो। ओके, हाँ, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस दीज डेज, बिकॉज इट इज मेडिटेटिव। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि उसके बाद ऐसा ना हो कि अब आजकल के बच्चों के साथ तो ये भी बड़ी दिक्कत है, तुरंत फोन उठा लेंगे, तुरंत फोन नहीं उठाना है, तुरंत ब्राइट लाइट्स में नहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए वो ऑब्जर्व करना पड़ता है। हाँ, ये प्रैक्टिस से फोकस इम्प्रूव होता है। ये प्रैक्टिस मतलब हमारे घर में हमने बचपन से ही करी हुई है, क्योंकि मम्मी कहती थी एग्जाम है तो एग्जाम से पहले त्राटक कर लो, थोड़ा पढ़ाई में मन लगेगा। मन नहीं लगता था पढ़ाई में, एग्जाम से जस्ट पहले नहीं होता है कि सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं, बस बुक्स ही नहीं, क्योंकि बुक्स इतनी देख ली है कि अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ रहा है। तो ये कोई भी बच्चा कर सकता है, उसको कोई प्रीवियस योगा की नॉलेज होना या प्रैक्टिस होना जरूरी नहीं? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान देना होता है कि अगर बच्चे की कोई ऑपरेशन हुआ है आई में तो नहीं कराना है। अगर बच्चा आई में लेंसेज पहनता है और चश्मे पहनता है तो उसको उतारना है, पहन के नहीं कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। Okay. हाँ, उसको उतारना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लेंसेज को उतारना बहुत ज़रूरी है।
योगा में स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करती है एंड उससे कैसे रिकनेक्ट हो सकते हैं हम? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. सो योगा में बेसिकली पूरा है ही स्पिरिचुअलिटी. इट्स जस्ट दैट everything we are doing is ultimately for this understanding that there is a higher self. This is not just it. The physical world that we experience is not all that is. जब हम 8 limbs of yoga की भी बात करते हैं तो 8 limbs of yoga में आपने अभी सुना होगा मुझसे कि लास्ट में प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि जी, है ना. समाधि की जब हम बात करते हैं, ध्यान की जब बात करते हैं, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं. धारणा तक भी मैं कह रही हूँ कि चलो कंसंट्रेशन है, स्पिरिचुअलिटी को इतना इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ध्यान और समाधि स्पिरिचुअल है ना. मेडिटेशन, जो आज के टाइम पे हम इसको मेडिटेशन समझते हैं, थोड़ा लूज वर्ड है मेडिटेशन. ध्यान को डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता मेडिटेशन में, बिकॉज धारणा को भी मेडिटेशन ही समझते हैं. ओके. सो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिसेस वी हैव दीज एक्सपीरियंसेस वेयर वी स्टार्ट टू रियलाइज दैट द बॉडी दैट वी सी एज इट इज नॉट ऑल दैट इज, है ना. एक तो हमें अपना एक ऑरा भी होता है हमारा, है ना, ऑरा होता है, वो भी समझ में आने लगता है. कि बहुत सिंपल, आपको एनर्जी समझ में आने लगेंगी. किसी रूम में आप एंटर करोगे, आपको पता लगने लगेगा कि इस जगह की एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आने लगती हैं. जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो नेगेटिव वाइब्स आने शुरू हो जाते हैं. हाँ, करेक्ट. तो एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, है ना. अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में भी अच्छा बुरा नहीं होता है. वो पॉजिटिव नेगेटिव इज जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स इट. वी डोंट लेबल इट एज गुड एंड बैड. देयर इज नो गुड एंड बैड. आपका मैस्कुलिन फेमिनिन साइड आपको समझ में आने लगता है. आपको ये समझ में आने लगता है कि अभी तक तो मैं सोचती थी कि मैं फीमेल हूँ, बट आपको ये समझ में आता है नहीं, देयर इज अ मैस्कुलिन टू यू आल्सो. देयर इज अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इन एवरी ह्यूमन बीइंग. क्लैरिटी होने लग जाती है हर सेंस में. एग्जैक्टली, हर सेंस में आपको ये समझ में आने लगेगा कि जितना सरफेस लेवल में जितना दिख रहा है उतना नहीं है. यू स्टार्ट टू लुक डीपर. दैट्स बेसिकली द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट टू गो डीपर, आस्क रियल क्वेश्चंस लाइक हु एम आई, you start to get those answers. Who are you ultimately? Right. Nothing and everything at the same time. So these answers start coming to you. Nothing and everything. Okay, अब बात करते हैं what is real meditation. जो हम आज तक जानते हैं वो नहीं, एक्चुअली मेडिटेशन का क्या मतलब बताना चाहेंगे आप? Real meditation, basically, first thing that I would like to establish is that meditation is not a skill. Okay. That can be taught. All right. जैसे आज के दिन में मेडिटेशन सिखाएंगे जी. मेडिटेशन कोई सिखा नहीं सकता आपको, फैसिलिटेट कर सकते हैं. Okay. I can facilitate it for you. I can tell you the techniques to enter into meditation. It's a state, है ना, to enter into it. बिकॉज सी अच्छा, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है मेडिटेशन को लेके होता है कि मुझे एक्सपीरियंसेस होंगे. मेडिटेशन करेंगे तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे. मैं कह रही हूँ आप मेडिटेशन करेंगे आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा. रियल मेडिटेशन इज डिवॉइड ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस बिकॉज यू ट्रांसेंड द माइंड. द माइंड इज व्हाट gives you an illusion of experiences. All your experiences are limited to the level of the mind. In meditation, you transcend the mind. If there is no mind, how can you have experiences? You cannot have experiences. It's a state of nothingness. Right. However, I would also want to establish that it's not a state that you might experience initially, which is fine. इसीलिए धारणा पहले आता है. आप कंसंट्रेशन से स्टार्ट करते हो. एक वर्ड, एक मंत्रा हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यू स्टार्ट टू फोकस योर ब्रेथ, है ना, ब्रेथ हो सकती है. यू स्टार्ट टू फोकस ऑन इट.
आप फोकस करते रहोगे, ऑटोमेटिकली यू विल रीच दैट स्टेट ऑफ व्हाट वी कॉल एज शून्य also, है ना, that zero, that nothingness. You automatically enter into it. It's not something that you can learn from anybody. It's not something that you do either. It's not an action, है ना. एक्शन तक लिमिटेड वही है जो धारणा कि आप किसी चीज को फोकस कर लो. ब्रेथ अवेयरनेस, ब्रेथ विटनेसिंग, डीप ब्रीथिंग, मंत्रा चैंटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डू, है ना. धारणा यू कैन do. Meditation you cannot do. Meditation you have to enter into. You can, एक और इसका misconception होता है, some people feel that you have to do meditation, for example, let's say 5 minutes a day, 10 minutes a day, है ना. ऐसा होता है कि टाइम निकालेंगे, टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, भी बोलते हैं टाइम नहीं मिल रहा है. मैं कह रही हूँ मेडिटेटिवनेस आप अचीव कर सकते हो थ्रू आउट द डे. तो मेडिटेशन हमारी टाइम बाउंड नहीं हो सकती. हाँ, मेडिटेशन टाइम बाउंड भी हो सकती है. सी, अभी क्या होता है हमारे साथ, हम वी लुक एट एवरीथिंग एज दिस एंड दैट, ईदर दिस और दैट, बिकॉज वी थिंक फ्रॉम अ लॉजिकल ब्रेन, है ना. लॉजिकल ब्रेन बोलेगा या तो मैं यहाँ हूँ या मैं वहाँ हूँ, मैं दोनों जगह तो नहीं हो सकती हूँ. बट स्पिरिचुअलिटी हैज टू ट्रांसेंड लॉजिक. मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ. तो मैं कह रही हूँ कि टाइम बाउंड भी है, नहीं भी है, दोनों चीजें हो रही हैं. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम का कॉन्सेप्ट है भी और नहीं भी है. माया, व्हेन वी लुक एट द इल्यूजन, द फिजिकल realm that we live in, there is time, but there is no time. There is space, there is a distance, there are two of us, you are a different person, I'm a different person, but then we are not. If somebody wants to go beyond the physical aspects of yoga, तो उसको शुरू कहाँ से करना चाहिए? Nice, interesting. So first thing is, शुरू खुद नहीं करना पड़ता. ओके. खुद से हो जाता है, अपने आप हो जाता है. अपने आप हो जाता है. हाँ, सी, वी आर ऑल इन अ जर्नी, है ना. दैट जर्नी अनफोल्ड्स इटसेल्फ. जो फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भगवत गीता को मानता है, उसका पूरा सार शॉर्ट में अगर एक बताया जाए तो एक तरीके से भी बोलता है आप कर्म करते चलो, है ना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. तो स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ ये होती है कि हमारे अभी के दौर में एनलाइटनमेंट या फिर अवेकनिंग, दैट स्टेट ऑफ समाधि, और तुरिया भी बोलते हैं, तुरिया अलग कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा, तो उसको भी हमने क्या किया, चेज बना दिया. ऑलराइट. है ना, हर एक चीज़ को चेज बना दिया, क्योंकि हाँ, हमने एक ट्रैक बना दिया है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये अचीव करना है, ये अचीव कर दो, मिलियनेयर बनना है जी, ये बनना है, वो बनना है. अब क्या, साधु बनने के लिए भी अवेकन्ड बनना है, पहले ही बनना है, मतलब सीधा वो गोल है, वो गोल पोस्ट में दिख रहा है, वहां तक भागना है, वहां तक पहुंचने की जल्दी है. क्यों जल्दी है, क्या बात की जल्दी है? जब आप यू आर लिविंग दिस लाइफ, you live this life the way it is unfolding every day, you live this moment, there is no past or no future, huh? If this is the moment that you have, then you live this moment, this is what you have in the hand, automatically journey unfold हो जाएगी. चेज नहीं, भागना नहीं है उसकी तरफ कि ये भागेंगे तो ये ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं. फिर कई ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में भी चले जाते हैं कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करके देखेंगे, ये तरीके के कुंडलिनी करके देखेंगे तो हमें जल्दी मोक्ष मिल. यू आर हियर टू एक्सपीरियंस दिस इल्यूजन, यू एक्सपीरियंस दिस इल्यूजन, ऑल द ब्यूटी ऑफ इट, द गुड एंड द अगली पार्ट्स. आई एम सेइंग एक्सपीरियंस द सैडनेस, experience the anger, experience the frustration. Only when you do this, you will be able to value the bliss, the beauty. Right. If there's no night, the day wouldn't look so nice. If there's no day, the night wouldn't look so intriguing. So live this beautifully, this moment. Automatically you'll be on your journey. तो फिजिकल को ट्रांसेंड कैसे करना है वो ऑटोमेटिकली आएगा. इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस, स्टे ऑन दिस पाथ, हैव द राइट इंटेंशन, दैट्स इट. लिव द प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, कार्पे डिएम, दैट्स इट. सो आपसे कोई अगर ऑथेंटिक योगा के लिए कनेक्ट होना चाहता है
कि हमें ऐसे योगा करना चाहिए या कैसे शुरू करना चाहिए, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? So there are a lot of ways. One is that we have this small project or organization which is called Mighty Himalayas. Mighty Himalayas basically conducts a lot of online and offline programs. So we Okay. teach online. And when I say we, basically means that we are a group of people. We're like a small community. Most of us are volunteers, and we basically give online classes, live online classes. We do recorded courses, online courses. Let's say if you're somebody who say that, okay, I can't, I don't have time, like we discussed in the podcast. So there are some very basic, simple, short practices that we have on the website. The website is mightyhimalayas.com, and you can go on the website, find those online courses. Just start with the basics. And if you're ready, let's say if you're somebody who feel that, no, I want to ditch this city life and I want to really experience it in the nature, what does it truly feel like, you can come to the retreats. We conduct retreats in various places. One is in Rishikesh, Almora. We keep changing. There's one coming in Mukteshwar. Beautiful places, very close to nature. You can practice yoga, meditation, and all of these practices of yoga basically. And it turns out to be a transformative journey if you're seeking one. That is, if you're coming with no intentions of anything, or maybe you're just coming as a vacation and you have that intention, it might as well feel like one. But if you're really sincere about it and come to it as a training program, then it might as well be transformative for you. So yeah, I mean, we conduct them every month. There's one retreat every month, so you can't really miss the chance. चलो, that's wonderful. I hope बहुत सारे लोग आपके पास आएं और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करें. Thank you. Thank you very much for coming here on the podcast. Thank you. Thank It was you once wonderful again. talking to you. Same here. Thank you.